नमस्कार। हेलो। मैं जय आरएस शर्मा। आज आप सभी के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है साइबर सेफ्टी, ऑनलाइन सेफ्टी, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी। हाँ जी, जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो आज के टाइम में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के आ रही है, और एक तरह से जिसके बिना आज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बट इस टॉपिक के बारे में हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली दिस टॉपिक फॉर द स्टूडेंट, what they have to do on the internet, what they don't have to do on the internet. So be safe on the cyber. So be safe on the cyber. Let's move to the next topic. So first question is, what is cyber safety? So what is cyber safety? According to the books and according to the Wikipedia, it is a practicing safe and responsible use of information communication technology, can be termed as cyber safety. और मैं कुल मिला के कहूँ कि एक तरह से it is trying to be safe on the internet and is the knowledge of maximizing the user's personal safety and security risk to private information. किस तरीके से हमारी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, हमारा ऐसा डाटा जो कि कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर में होता है व्हेन वी आर वर्किंग ऑन ऑनलाइन, उसको किस तरीके से बचाया जाए, सेफ रखा जाए, दैट इज साइबर सेफ्टी। नाउ जो हमारी चीज़ों को कहीं ना कहीं चुराना चाहते हैं, हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग एक कर जो एक्टिविटी करते हैं उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज साइबर क्राइम? So cybercrime is any criminal activity that involves a computer, networked device or a network. Illegal or criminal activity happens using a computer as the primary mean of operation, or it is a white collar crime. Basically, cybercrime is implemented with the help of the computer, and the computer is implemented, this all things is implemented in the networking interface. And due to this increasing cybercrime in the India, the government has decided to bring one act accord to stop this cybercrime. So the Information Technology Act 2000, which is also known as ITA 2000 or ITA Act, is an act of the Indian Parliament notified on 17 October 2020. It is the primary law in India dealing with cybercrime and electronic commerce. So, ITA 2000 is basically dealing with the cybercrimes and electronic commerce. So, those who are thinking that the cybercrime is a fun, the cyber involvement, cyber doing any type of harm to on the cyber is a fun, it's a enjoyment, it's a cool activity, it's a heroic activity. So, be careful because the government is now making it under the cybercrime. Detail, what are the punishment, what are the fines the government are taking, that I will explain you in the next video regarding the IT Act 2000. IT Act 2008 is also amended. Under this section 6665 has been added, that I will discuss in the next slide. So next is do's for students and other in cyber world. क्या करना चाहिए हमें साइबर वर्ल्ड में सेफ रहने के लिए? हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन सबके दिमाग में उठते हैं, क्या करूं मैं, हाउ आई विल बी सिक्योर इन साइबर वर्ल्ड? सो कम टू द फर्स्ट वन। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। अब ये पूछेगा प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी इज बेसिकली एकांत। वी शुड नॉट वायलेट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। सेकेंड वन, रिपोर्ट and flag content that is abusive or illegal. अब एब्यूसिव क्या होते हैं? ऐसे कंटेंट जो कि अपमानजनक हैं, और इलीगल क्या? ऐसी चीज़ें जो अवैध हैं। अवैध और अपमानजनक चीज़ों को तो आप समझ चुके होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपमानजनक हो या अवैध हो, उनके बारे में तुरंत रिपोर्ट करो या उनको हाईलाइट कर दो कंटेंट को। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। Adhere to copyright restrictions when downloading materials from the internet, including software,
games, movies, or music. Today it's very important because lot of guys are not able to understand what is the meaning of the copyright. Basically copyright क्या है? कॉपीराइट की कुछ restrictions हैं. We cannot use any software, any game, any movie and any music, and cannot market it without the permission of the original copyright owner. So try to be safe from this market instead of using this. Third one, use an alias alternate name as username if you use need to interact and chat with others online. कोशिश करो अपना नाम कुछ डिफरेंट रखो यूजर नेम. इफ यू आर इंटरेक्टिंग विथ अननोन पर्सन ऑनलाइन, आप यदि अननोन पर्सन से बात करते हो, डोंट यूज योर ओरिजिनल नेम. अपना रियल नेम से कभी यूजर नेम मत रखिए. ट्राई टू हैव योर डिफरेंट यूजर नेम. फिफ्थ वन, report online bullying, very important word, bullying immediately to teachers, parents, someone whom you trust. This is one of the important crime which is happening in schools, in societies. Now first of all, what is online bullying? बेसिकली बुलिंग क्या होती है? आजकल क्या होते हैं, कुछ ऐसे बदमाश लोग होते हैं जो ऑनलाइन बदमाशी का काम करते हैं. एम्बेरसिंग, किसी को एम्बेरस करना, किसी को डराना, या किसी को धौंसियाना, मतलब धौंस दिखाना. एक ऐसी एक्टिविटी होती है बाय मैसेज और एनीथिंग. ब्लैकमेल करना, किसी को चिढ़ाना, किसी को शर्मिंदा करना, दूर बैठे बैठे उसको. दिस इज व्हाट बेसिकली ऑनलाइन बुलिंग. कोई बच्चा फेल हो गया, उसको चिढ़ाना बार बार. कोई बच्चा हाइट में छोटा है, उसको चिढ़ाना. कोई मोटा, उसे चिढ़ाना. कोई बहुत दुबला पतला है, उसे चिढ़ाना. तो ये क्या होता है, इस आजकल ऑनलाइन बुलिंग एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग सच ए वे कि लोग इतना एम्बेरस हो जाते हैं कि दे स्टार्ट टेकिंग सच अ बिग स्टेप इन द लाइफ. दैट इज नॉट गुड. Next, use a strong and unique password, combination of numbers, uppercase and lowercase letter, and special character for each account. ये बहुत important बात है. Whenever we are making a password of any account, try to make an account password as a strong password होना बहुत जरूरी है. और साथ साथ में पासवर्ड का यूनिक होना भी बहुत जरूरी है. अब बात ये आती है पासवर्ड में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए. पासवर्ड के अंदर आपके नंबर्स का कॉम्बिनेशन अपर केस होता है जब हम किसी चीज़ को कैपिटल में लिखते हैं, और लोअर केस और स्मॉल केस में लिखते हैं. आपके पासवर्ड में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, 4 चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है, जैसे नंबर्स, कैपिटल में लेटर्स, स्मॉल केस में लेटर्स, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ साइन हो गया, हैश का सिंबल हो गया. तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स, परसेंटेज का सिंबल हो गया, कैरेट का सिंबल हो गया, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं. इन सब का सिंबल्स का यूज़ करके, अपर केस, लोअर केस और नंबर्स का यूज़ करके अपना पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना चाहिए. सो इट विल नॉट बी ईजी फॉर द हैकर टू क्रैक योर पासवर्ड. नेक्स्ट पॉइंट, की ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंटीवायरस अप टू डेट. कोशिश करो कि अपने ब्राउज़र को हमेशा अपडेट करते रहो. Because the company who has developed the browser, they are working on very lot on the part to secure their software, operating system. Update your operating system frequently whenever it want any type of update, and have your antivirus well updated so that it can catch the current or new viruses which are going in the market. Obtain software, next point, obtain software from trusted sources. ऑलवेज स्कैन फाइल्स बिफोर ओपनिंग देम. कोशिश करो कि सॉफ्टवेयर वहीं से डाउनलोड करो या सॉफ्टवेयर वहीं उसी से लो जो कि बहुत ट्रस्टेड सोर्स हो. डोंट ट्राई टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी अननोन सोर्सेस, फ्रॉम दोज सोर्सेस विच आर नॉट लीगल. और कभी भी किसी सॉफ्टवेयर को या फाइल को डाउनलोड करने के बाद ओपन करने से पहले उसे एक बार एंटीवायरस में स्कैन जरूर करिएगा. पॉइंट नंबर 9, लॉक योर स्क्रीन व्हेन यू आर फिनिश यूजिंग योर कंप्यूटर, टैबलेट और फोन्स.
Further, set it to unlock automatically when it goes to sleep. बेसिकली व्हाट इट हैपन्स, हमें अपने स्क्रीन्स को जैसे हम कोई काम कर लेते कंप्यूटर में, या कंप्यूटर से उठ के जा रहे हैं, या फ़ोन में लैपटॉप में मेरे को कोई काम नहीं है, तो उस केस में अपने फ़ोन को ऑटोमेटिकली या तो लॉक हो जाए, जैसे स्क्रीन में से ब्राइटनेस ख़त्म हो तो या तो फ़ोन उस समय लॉक हो जाए, स्लीप मोड में जाते हैं सिस्टम का या फ़ोन का या मोबाइल का किसी का स्लीप मोड में जाते हैं, या तो पासवर्ड लग जाए, या दूसरा तरीका ये है कि वी शुड हैव पुट योर स्क्रीन लॉक्स whenever you are putting your phone and moving some here and there. तो अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, इनमें लॉक स्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट है, check to see if the web address begin with https colon double backslash whenever you sign in online. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. whenever you doing any type of online shopping, whenever you are doing only any type of online transactions, you are any type of e-banking you are doing on any website, first see that whether the URL का जो फर्स्ट प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल में HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है. HTTPS shows that whatever the transaction you are doing, whatever any type of online marketing, online shopping you are doing, online ticketing, whatever internet facility you are accessing from the net, it is secure for you. So be careful on the part of that. नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट नंबर 11, मेक प्राइवेसी सेटिंग इन सोशल मीडिया अकाउंट सच दैट प्रोफाइल एंड पोस्ट आर विजिबल ओनली टू क्लोज फ्रेंड्स एंड एक्विटेंसेस. कोशिश करो कि सोशल मीडिया में यदि बहुत एक्टिव हो तो अपने कुछ ऐसे पर्सनल पोस्ट हैं उनको, जैसे कि आपकी कुछ प्रोफाइल या कुछ ऐसे पोस्ट हैं, इट इज़ विजिबल टू ओनली योर फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स और फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, but it should not be made public. So this is very important point when you are posting any type of post you are doing on any type of social media. Point number 12, connect only with known individuals. It's very true, because nowadays what we are seeing from the far away, by looking at the profile pic, by looking at the profile details, it's not always be true. तो कोशिश करो कि उन्हीं से कनेक्ट हो जिसको आप जानते हो, नोन इंडिविजुअल्स. डोंट ट्राई टू बी कनेक्टेड विद स्ट्रेंजर्स, बिकॉज स्ट्रेंजर्स ही ऑनलाइन में सबसे बड़े हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं. पॉइंट नंबर 13, बी माइंडफुल फॉर योर डिजिटल रेपुटेशन. थिंक ट्वाइस बिफोर यू पोस्ट समथिंग एम्बेरेसिंग, harmful or inappropriate. Nowadays this is one of the biggest point, because the government has also put it this point under the cyber crime act, because आजकल कोई भी अपनी कुछ भी पोस्ट कर देता है विदाउट एनी वेरिफिकेशन वेदर दैट न्यूज़ इज फेक और नॉट. बिना वेरीफाई किए कि वो डिटेल सही है या नहीं, उसको पोस्ट कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, without thinking that that post will create, what impact it will create on the social market. They post it. So we should be very careful, because digital reputation is also very important. किसी भी चीज़ को पोस्ट करने से पहले 2 बार नहीं 10 बार सोचिए, because that post should not be embarrassing, it should not be harmful for society, it should not be appropriate for your any society. So you should be careful. You should, all of us should be careful while posting anything. Point number 14, report to the service provider immediately if the account is hacked. If possible, deactivate your account. अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है तो तुरंत आप जिससे सर्विस एक्सेस कर रहे हो उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करो. अगर हो सके तो डीएक्टिवेट कर दीजिए अपना अकाउंट. डीएक्टिवेट योर अकाउंट, इट इज़ वेरी गुड. सो ये सारी पॉइंट्स वो थी जो हमें करनी चाहिए. नाउ कम टू द दोज पॉइंट्स दैट इज द नेक्स्ट डोंट्स फॉर स्टूडेंट एंड अदर इन साइबर वर्ल्ड. क्या ना करें, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग. फर्स्ट पॉइंट, डोंट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, रियल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर एक्सेट्रा अननेसेसरी.
whenever lot of time we'll see that कि बहुत attractive advertisement आया है, बहुत अच्छा offer आया है, बहुत अच्छा discount आया है, और हम उस पर क्लिक करते हैं, अप्लाई नाउ कहता है, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल रही है, हायर पैकेज प्रोवाइडिंग कर रहे हैं, दे आर सेइंग अप्लाई नाउ, हरी अप, और हम क्लिक कर देते हैं। एट द टाइम वी क्लिक इट ऑन इट, दे फिल अप आवर ऑल डिटेल्स, हम बहुत जल्दी में डिटेल अपनी फिलअप कर देते हैं, वी फिल ऑल आवर कंप्लीट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, and we click on the submit button, nothing happens. So we should be very careful while sharing your personal information. पर्सनल इंफॉर्मेशन बिना प्रॉपरली वेरीफाई किए हमें किसी को भी शेयर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट सेंड योर पिक्चर्स टू अननोन पर्सन और शेयर इट इन सोशल मीडिया। डोंट, आजकल के टाइम में क्या सोशल मीडिया इतना बड़ा हब बन चुका है कि लोग इसमें इंजॉयमेंट को बहुत ज़्यादा लेने लगे, कि इंजॉयमेंट के लिए वो लोग कैसे भी किसी की फ़ोटो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं बिफोर थिंकिंग इट। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें खुद भी अपनी कोई ऐसी फ़ोटोज़ पोस्ट नहीं करनी चाहिए किसी अननोन पर्सन को, या किसी अननोन पर्सन को शेयर नहीं करना चाहिए जिससे कि आगे के टाइम हमें कोई दिक्कत हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट ओपन मेल्स एंड अटैचमेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। whenever any mail come in your inbox or spam folder, before opening that mail or any type of attachment in that mail, first see from where the mail has been come. If it is a strange mail or if the mail is not relevant to you, straight away delete it. Don't try to be over smart by clicking on that mail and see what attachment is there, because it is not relevant for you. You will not even guess that किस टाइप के हैकर्स मार्केट में बैठे हैं, एंड दे इजली हैक योर सिस्टम, दे इजली कैन एसेस योर डाटा by one just stupid activity. By opening the attachment or mail, they can make the worms and Trojan horse enter into your system, and what they can do we can also not imagine. Point number 4, don't respond to any suspicious mail, instant message, or web page asking for personal information. Nowadays, any type of suspicious mails came to you and he or that particular mail asked you for that your information, personal information, don't give any personal information, again I am telling you. Next, don't enter a password when someone is sitting beside you as they may see it. फ्रेंडशिप अपनी जगह है, दोस्ती यारी अपनी जगह है, but when it's matter comes for the password, don't enter a password when someone is sitting beside you. Try to have your password secure. If anyhow that person see your password, straight away change the password. It's good for you and for your safety also. Point number 6, don't share your password with anyone. Don't share your password with any unknown person. It can harm, he or she can harm you whenever it wanted. नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 7, डोंट सेव योर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन द ब्राउजर। वेन कईयों की प्रैक्टिस होती है कि दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज वॉट एवर द पासवर्ड दे आर हैविंग फॉर देयर अकाउंट, बिकॉज लॉट ऑफ अकाउंट दे आर हैविंग, lot of social media account they are having, lot of mail id they are lot of mail account they are having, so it's not easy for them to remember each and every password. So what they does, they make the browser to in browser में save कर देते हैं अपने सारे password. It's not a good practice, or especially when your system is not a private. If your system is not a private, if mobile phone is not a private, don't save your username and password on the browser. पॉइंट नंबर 8, डोंट स्टील अदर इन्फॉर्मेशन। अगर बाय मिस्टेक कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो भी जाती है, बाय मिस्टेक किसी से गलती से कुछ चीज़ आपको ऐसी चीज़ पता चल जाती है जिससे कि आप उसके अकाउंट को हैक कर सकते हो या उसके किसी तरह से हार्म पहुंचा सकते हो, उसके अकाउंट को ट्रैक कर सकते हो, डोंट एवर ट्राई टू डू दैट, बिकॉज नाउ it is very easy to track that guys who is stealing the other important information. Point number 9, don't access or use files without the permission of owner.
बिना ऑनर की परमिशन के उसके सिस्टम किसी फाइल को या कोई और डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 10, डोंट कॉपी सॉफ्टवेयर विच हैज कॉपीराइट विदाउट द ऑथर्स परमिशन। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है, तो मैं बिना ऑथर की परमिशन के मुझे उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या उस किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, डोंट बुली अदर ऑनलाइन बाय टीजिंग, थ्रेटनिंग, यूजिंग रूड और ऑफेंसिव लैंग्वेज, मेकिंग डेरोगेटरी और हेटफुल कमेंट एक्सेट्रा। मैंने पहले भी बताया था कि ऑनलाइन बुलिंग बहुत बड़ा क्राइम हो चुका है आजकल के टाइम में। सो कोशिश करो कि किसी को टीज करना, छेड़ना, धमकाना, बहुत ही रफली रूडली बात करना, ऑफेंसिव गंदी लैंग्वेज का, अभद्र लैंग्वेज का यूज़ करना, बहुत डेरोगेटरी मतलब उससे ज़्यादा जांच पड़ताल करना और उससे हेटफुल कमेंट करना उसको, दिस थिंग्स इज कमिंग अंडर द ऑनलाइन बुलिंग क्राइम। सो अवॉइड commenting anything online because it will promote your online bullying activity. Point number 12, don't use someone else password even if it is shared with you. क्या होता है, कई बार हम किसी पर विश्वास करके उसको अपना पासवर्ड दे देते हैं, तो उस विश्वास को आपको बनाए रखना है। डोंट इवन ट्राई टू यूज दैट पासवर्ड दैट इज शेयर्ड विथ यू, दैट इज अ वेरी गुड पार्ट, बिकॉज कभी अगर गलती से कोई पासवर्ड शेयर हो जाता है तो हमें कोशिश करना चाहिए उस पासवर्ड को शेयर ना करें, शेयर किए पासवर्ड को यूज़ ना करें। पॉइंट नंबर 13, डोंट लॉग इन एज समवन एल्स टू रीड देयर मेल्स और मैस विथ देयर ऑनलाइन प्रोफाइल्स। किसी और के अकाउंट में लॉगिन कर करके उसके मेल्स को रीड करना और उसके साथ उसकी ऑनलाइन प्रोफाइल के साथ छेड़खानी करना, उसकी प्रोफाइल की डिटेल्स को चेंज करना कभी नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 14, डोंट अटेम्प्ट टू इन्फेक्ट और in any way try to make someone else कंप्यूटर अनयूजेबल। कभी ये मत सोचना कि तुम्हें कंप्यूटर की ज़्यादा जानकारी है तो मैं किसी तरह किसी और के कंप्यूटर कुछ ऐसा हम कर दूं कि उसको वो कंप्यूटर चला ना पाए, उसका कंप्यूटर क्रैश हो जाए, उसके सॉफ्टवेयर उड़ जाए, सिस्टम बंद हो जाए। डोंट एवर ट्राई टू डू दैट। पॉइंट नंबर 15, मीट पीपल यू हैव नोन थ्रू ऑनलाइन, meet people you have known through online alone, inform an adult or a friend। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है क्योंकि आजकल की फ्रेंडशिप ऐसी होती है, फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई, व्हाट्सएप से फ्रेंडशिप हुई, ट्विटर से फ्रेंडशिप हुई, इंस्टाग्राम से फ्रेंडशिप हुई, तो वॉट एवर दिस, आजकल के लोग इतनी जल्दी, यंग जनरेशन इतनी जल्दी विश्वास करके उस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने को शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एकांत जगह पे मिलना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट गुड। Whenever you having any new friendship in social media, try to share your friend person with your adult, with your younger brother, with the elder brother, with your parents, with your guardians, with your teachers, so it will, that particular new online, your new friend will not harm you. So it is very easy that you should share with each and everyone, whoever is your new social media friend. Don't open or download any attachment from an unknown sources as they may contain the virus। सेम थिंग पार्ट है, कभी कोशिश मत करो अननोन सोर्सेज से कोई चीज़ डाउनलोड करने की, हो सकता है उसके साथ कोई वायरस हो। सो ये तो बेसिकली हमारी वो पॉइंट्स थी जो हो डोंट से। नाउ इस वीडियो को वॉच आउट करने के बाद इट विल बी वेरी क्लियर फॉर ईच वन ऑफ योर ईच स्टूडेंट्स कि हमें क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज cyber safety, online safety, electronic safety is very important because now India is moving towards the digitalization, India is moving towards the online study, online learning, online business, e-commerce, each and everything is now connected with the electronic terms, so we have to be safe. So finally I want to give the credit and thanks to the, because the content which I have taken is from the CBSE and CRT. So thanks to the CBSE and CRT because this content has been taken from them. Thank you.